तो हेलो गुड मॉर्निंग मेरे प्यारे बच्चों, मेरे प्यारे दोस्तों, मेरे प्यारे स्वीट स्वीट बच्चों। बच्चों, इंसान में अच्छाई और बुराई दोनों होती है हमारे अंदर। जिसे ज़्यादा इस्तेमाल करो वो ज़्यादा निखरती है, जिसे हम ज़्यादा यूज़ करेंगे वो ज़्यादा निखरेगी। और अच्छाई करना मुश्किल होता है क्योंकि अच्छाई करने में कठिनाइयाँ और परेशानियाँ आती हैं, जबकि बुराई बड़ी आसानी से हो जाती है। बुरी बातें हम बड़ी जल्दी सीख जाते हैं। तो बच्चों, कोशिश करो कि आप अच्छे काम करो और अच्छे डायरेक्शन में, अच्छे रास्तों की तरफ चलो, अच्छी बातों को सीखो। तभी अच्छाई निखर कर आएगी और आपकी बुराई धीरे धीरे कम होती जाएगी। और एक समय ऐसा आएगा दैट यू आर नॉट completely perfect but nearly perfect. So my dear students, मेरे प्यारे बच्चों, today I am going to discuss alternating current through capacitor. ये हमारा AC फिफ्थ नंबर है, फिफ्थ हमारा डिस्कशन हो रहा है, यानी मेरा लेक्चर AC के लिए फिफ्थ है। सो टुडे आई एम डिस्कसिंग AC थ्रू कैपेसिटर, AC थ्रू कैपेसिटर, करेक्ट। सो ठीक है, कैपेसिटर ले लेते हैं और उसको एसी से कनेक्ट करते हैं। एंड यू नो वेरी वेल, वी आर टेकिंग ए कैपेसिटर ऑफ कैपेसिटेंस सी एंड कनेक्टेड विथ अल्टरनेटिंग सोर्स ऑफ ईएमएफ ई। इसको वी भी कह सकते हो आप, मैंने पहले ही बताया। एंड आई इज दी करंट हियर, करेक्ट। एंड ड्यू टू दिस क्या होगा आपको पता ही है, ये चार्ज हो जाएगा। नाउ इट इज very very interesting to know when AC is connected with DC, when, sorry, not AC is connected, when capacitor is connected with DC, capacitor is connected with DC, then charge accumulates here. And when charge accumulates here, then what happens? Potential increases, and that potential opposes the flow of current. It means a capacitor regulates or limits the DC current or DC EMF. But what about AC? When we connect AC, then also it is charges. But it does not prevent the total flow of charge. It means some charge can be flowed during AC cycle. And you know very well, for AC positive cycle it charges, and for AC negative cycle, half of the negative cycle it discharges, and this process going on. And in DC, when capacitor is fully charged, then there will be no flow of current. In DC, when capacitor is fully charged, there will be no flow of current. But in AC, it is not completely charged because it charges and discharges, charges and discharges. So what about the EMF and current here? ठीक है, पहले हम अपना EMF ले लेते हैं. So consider a pure capacitor, consider a pure capacitor of capacitance C is connected with alternating source of EMF, with alternating source of EMF E. ठीक है. Now the instantaneous value of EMF, instantaneous value of AC EMF is equal to E naught sin omega t. Actually, we are finding phase relationship between EMF and current, and for that first we are taking EMF and then we are finding current, and then we compare current equation with EMF equation. तो उससे पता लग जाएगा. फिर देख लें हम. Consider a pure capacitor of capacitance C is connected with alternating source of EMF E. The instantaneous value of AC EMF is equal to E naught sin omega t. Correct? अब current की तरफ जाते हैं. So you know very well, when capacitor charges, then potential also increases. So when
कैपेसिटर charges, then potential increases, correct? That is Q proportional V, यहाँ आ जाता हूँ, और Q equal to CV, और we are not taking V, we are taking E, so this is C E naught sin omega t. तो आप कहोगे यार ये किया क्या सर ने? अरे सीधी सी बात है यार, आपको पता है कि वी हैव टू फाइंड करंट. क्या निकालना? करंट. एंड करंट इज आई इक्वल टू डी क्यू बाई डी टी. बस, तो मैं क्यू निकाल रहा हूँ और फिर इक्वेशन में रख दूंगा. तो देखिए, व्हेन कैपेसिटर चार्जेस एंड पोटेंशियल इंक्रीजेस, दैट इज क्यू प्रोपोर्शनल वी, और Q equal to CV. C is a constant capacitance or capacity, so Q equal to CV or CE, because I am not taking V, I am taking E. So Q equal to CE naught sin omega t. Now we know, actually we are finding current, so I equal to dQ by dt है ना. अब Q की वैल्यू रख देते हैं, d by dt C E naught sin omega t. ओके, सो C एंड E naught ये बाहर आ जाएगा, एंड dy by dt of sin omega t. You know very well in differentiation also, differentiation with respect to t, तो t वाली टर्म अंदर रहेगी. कौन सी टर्म अंदर रहेगी बच्चों? t वाली, और बाकी टर्म कहाँ हो जाएगी? बाहर. नाउ इंटीग्रेशन, डिफरेंशिएशन ऑफ d अपॉन dx, ये फार्मूला बता रहा हूँ आपको. डिफरेंशिएशन ऑफ d अपॉन dx ऑफ sin ax इज a cos ax. ये फार्मूला होता है. एक्चुअली साइन का पहले डिफरेंशिएशन cos होता है और फिर ax का डिफरेंशिएशन a आ जाता है. सो हियर I इक्वल टू C E नॉट इंटू दिस इज ओमेगा इंटू कॉस ओमेगा टी. ओके, एंड वी नीड I इक्वल टू आई नॉट वाली इक्वेशन चाहिए. तो आई नॉट मीन्स V अपॉन आर, E अपॉन आर. तो E के साथ वाले सब नीचे ले जाओ, ये ओमेगा और C को. So E equal to E naught upon 1 upon omega C, and this is cos omega t as it is. Correct? Now we put 1 upon omega C. इस omega C को हटाऊंगा, ये हटा देता हूँ बच्चों. ओके, ये आप समझ चुके हो. ये भी हटा देता हूँ. चल भाई हट जा, बोर्ड थोड़ा खराब हो रहा है, गंदा हो रहा है. इसको जरा अच्छे कपड़े से साफ कर देते हैं, और साफ हो जाएगा. Now you know very well what is 1 upon omega c. इसको मैं पुट कर रहा हूँ. पुट 1 upon omega c equal to xc, and that is known as capacitive reactance. Capacitive reactance means opposition offered by capacitor in the path of AC. Opposition offered by resistor in the path of current is resistance. Opposition offered by inductor in the path of current is inductive reactance. And opposition offered by capacitor is known as capacitive reactance. ये अभी आगे भी यूज करेंगे हम. So I am putting this, and also एक चीज और हमको पता है कि cos omega t is sin omega t plus pi by 2. Sin 90 plus theta is also known as cos theta. ये भी होता है. So I equal to E naught upon xc, and this is sin omega t plus pi by 2, and E naught upon xc is nothing but I naught, and this is sin omega t plus pi by 2. This is my question number 2. तो कई बच्चे सोच रहे होंगे यार ये क्या काम किया है, क्यों कॉस को साइन में बदल दिया. यू नो वेरी वेल, आवर फर्स्ट इक्वेशन ऑफ ईएमएफ वाज इक्वल टू ई नॉट साइन ओमेगा टी. यही है ना. तो ये भी तो साइन में आनी चाहिए, नहीं तो उसको कंपेयर कैसे करेंगे हम, इक्वेट कैसे करेंगे.
So I, yes, cos 90 plus theta, 90 minus p होता है. I am not taking minus because here minus is not there. So I am taking plus. And from equation 1 and 2, if you compare, तो first equation क्या थी? First equation थी E equal to E naught sin omega t. ये थी इक्वेशन. तो देखिए ओमेगा टी है और यहाँ ओमेगा टी प्लस पाई बाय टू. इट मीन्स नाउ करंट इज अहेड. अब करंट आगे निकल गई 90 डिग्री. सो फाई इक्वल टू पाई बाय टू एंड ईएमएफ पीछे रह गया. ईएमएफ लेग्स बिहाइंड करंट बाय पाई बाय टू. तो कोई बोला नहीं नहीं हम तो करंट को पहले लिखेंगे. आप करंट को पहले लिख लो. और करंट लीड्स ईएमएफ बाय पाई बाय टू. तो याद है इन रजिस्टर साथ में इंडक्टर में ईएमएफ आगे था एंड इन कैपेसिटर नाउ करंट इज अहेड. कौन आगे है? करंट. दिख रहा है नीचे? हाँ. ओके. सो now we have to draw a phasor diagram first of all and curve between omega t and E and I. So V also you can use and also we are going to discuss HC अभी discuss करूँगा मैं. So phasor diagram देखते हैं. Phasor diagram. So in phasor diagram always किसको बनाते हैं पहले? याद आया? हाँ, EMF. Very good. This is peak value E naught. And if you draw a projection, this is E. What is E? याद है ना आपको? This is E naught sin omega t. And where is current now? Current आगे निकल गई 90 डिग्री. This is omega t और ये 90 डिग्री आगे. इसको थोड़ा छोटा बनाते देखो. क्यों बनाते हैं? Because current is maybe smaller or maybe larger. आपकी मर्जी है. So this is I. और I क्या होता है? I इक्वल टू I नॉट साइन ओमेगा टी. और यहाँ पर प्लस पाई बाय टू भी है. ये देखो ये 90 डिग्री हो गया. तो आप लिख सकते हो प्लस पाई बाय टू. इफ यू वांट यू कैन राइट. इफ यू वांट यू कैन राइट ओमेगा टी ऑल्सो. तो दिस इज द फेजर डायग्राम. एंड नाउ द कर्व बिटवीन E एंड I एंड ओमेगा टी. तो वैसे ये पुरानी वाली कर्व भी यूज कर सकते हो. उसमें आप वोल्टेज और करंट का नाम बदल दो तो भी हो जाएगा. मैं दोनों तरीके बताता हूँ. पहला तरीका याद है ये. दिस इज EMF बट आई एम नाउ टेकिंग करंट एंड यू नो वेरी वेल. आप कहोगे अरे सर आप पहले लिखते नहीं हो पूरी बात. तो ये ओमेगा टी. दिस इज E एंड I. सो दिस इज माय I. And now EMF starts 90 degree before lag behind है. तो EMF यहाँ से चालू होगा जब ये मैक्सिमम हो चुका है. This is I naught. Okay. तो current EMF starts from here. EMF बड़ा बना देता हूँ. ये EMF. And this is peak value. जब ये जीरो होगा तब ये मैक्सिमम है. ओके. एक तो ये तरीका है. दूसरा तरीका, एक और तरीका देखो. बिकॉज आपको EMF पहले बनाना अच्छा लगता है तो हम EMF पहले बनाते. देखिए दिस इज ओमेगा टी. हियर वी हैव E एंड I. सो फर्स्ट ऑफ ऑल आई एम ड्रॉइंग EMF. EMF बना देता हूँ. चलिए EMF बड़ा सा है हमारा. ये EMF. चल भाई EMF. And this is peak value. This is peak value E naught. Correct? And now where is current? करंट पहले ही आ गई थी. मतलब करंट ऊपर से चालू हो गई. फिर करंट यहाँ से आ गई. ये देखो करंट पहले आ गई. क्या आ गई पहले? ये देखो दिस इज I naught.
और माइनस आई नॉट एक ही बात है। सो ये थोड़ा ज़्यादा हो रहा है ना, आप कहोगे ऊपर से कैसे आ गई, इसका मैग्नीट्यूड ज़्यादा तो है नहीं, मैग्नीट्यूड तो कम है, तो यहाँ से आएगी, यहाँ से, ये आई नॉट, ये देखो यहाँ से ना ये गई, दिस इज आई। सो टू डायग्राम्स आई हैव गिवन यू फॉर ई आई एंड सो साइन ओमेगा टी वाले, एंड नाउ आई एम गिविंग यू वन very important concept here regarding this one. Which one? Capacitor. Suppose this is a capacitor, capacitance C, and it is connected with DC source. ये key है हमारी, okay? And here I am inserting a dielectric slab of dielectric constant K, and one more diagram इसके बाद दूंगा आपको. So first of all we are discussing what is Xc. It is asked in the examination number of times. So I am discussing Xc. Xc you know very well, it is capacitive reactance. याद है आपको? The opposition offered by capacitor in the path of current is called capacitive reactance. The opposition offered by capacitor in the path of current is called capacitive reactance. So Xc क्या था याद है? 1/omega c, and omega is 2 pi mu c. This must be our formula. So Xc inversely proportional omega, inversely proportional nu, and inversely proportional c. इन पर डिपेंड करने वाला। तो अब मैं इस क्वेश्चन पे आता हूँ। नंबर 1, व्हेन इट इज कनेक्टेड विद डीसी, सो यू नो वेरी वेल व्हेन कनेक्टेड विद डीसी इट चार्जेस, एंड व्हेन इट फुल्ली चार्ज व्हेन करंट बिकम्स 0। तो मैं तो उसको भी भूल जाता हूँ कि वो क्या है, मैं फार्मूले पे जाऊंगा। सो वी नो Xc इक्वल टू 1/omega c और 1/2 pi mu c, एंड फॉर DC न्यू इज इक्वल टू 0 होता है। कितना होता है न्यू? 0। फ्रीक्वेंसी नहीं होती DC की, तो यहाँ 0 रख दिया मैंने। तो Xc इक्वल टू 1/2 pi into 0 into c, and if you are dividing anything by 0 then what happens? You will get infinity. Oh, Xc is infinite. What does it mean? कैपेसिटर अपोजेस डीसी, कैपेसिटर अपोजेस डीसी, और यहाँ पर एक बल्ब भी तो लगा दें, पता चलेगा चलता है कि नहीं चलता है। ये बल्ब है मेरा, ओके, ये मिटा देता हूँ, थोड़ा आपको साफ साफ दिखेगा तो अच्छा लगेगा। सो वी नो Xc इक्वल टू 1/omega c और 1/2 pi mu c for DC, mu is 0, so Xc equal to 1/2 pi into 0 into c, that is infinite. Therefore capacitor blocks DC, कैपेसिटर DC को ब्लॉक कर देता है। तो बल्ब क्या होगा कि ऑन किया तो भी बल्ब जलेगा नहीं। Therefore bulb will not glow, बल्ब ग्लो नहीं करेगा बच्चों। DC से कनेक्ट किया है, ये बहुत बढ़िया है, समझ में आया। नाउ इफ वी आर कनेक्टिंग विथ AC, then what happens? So AC पे आता हूं मैं। For AC, so for AC again formula is 1/omega c
और 1/2 न्यू सी, करेक्ट। सो न्यू ए सी इज नॉट जीरो, इट इज फाइनाइट वैल्यू है, ये जीरो नहीं होता, बिकॉज इन ए सी इन इंडिया 50 हर्ट्ज इज देयर and capacitor also some value. So x equal to 1/2 pi into nu is finite value into c. तो ये सब ज्यादा है तो ये क्या होगा, इन्वर्सली है ना, कम हो जाएगा। इट मीन्स 1/finite value, 1/finite value. So this is more, so this is less. Therefore, xc is small for AC. और जनरली देखा जाए तो ये वैल्यू बहुत कम आ जाती है, जीरो के बराबर। क्यों जीरो के बराबर? अरे इतनी बड़ी टर्म से किसी को डिवाइड करोगे तो वो जीरो के बराबर ही आएगी। Therefore, xc does not oppose AC, करता तो है, for large extent, ये ज्यादा अपोज नहीं करता, यानी ये पास होने देता है। इट अलाउज एसी टू पास थ्रू, ये भी लिख देता हूं, यहां लिखता हूं, कैपेसिटर अलाउज एसी थ्रू एसी pass through कैपेसिटर, पास होने देता है ये। तो जब ये पास होने देगा तो बल्ब ग्लो हो जाएगा। Therefore, when K is closed, bulb glows because Xc is nearly equal to 0. ये वाली लाइन लिख देते हैं, Xc is nearly equal to 0. Now what happens if I insert A here, dielectric constant of, sorry, A dielectric of dielectric constant K. तो ये भी क्वेश्चन आता है, when a dielectric having dielectric constant K is inserted, then क्या होता है बच्चों, जरा बताओगे? जब डाइलेक्ट्रिक डाल देते हैं तो कुछ फर्क पड़ता है क्या? डाइलेक्ट्रिक डालते हैं तो कैपेसिटी इंक्रीजेज, कैपेसिटी क्या हो जाती है, इंक्रीजेज। देयरफॉर C इंक्रीजेज एंड Xc इनवर्सली प्रोपोर्शनल C, तो C इंक्रीज हो रहा है तो Xc डिक्रीजेज, Xc डिक्रीजेज मीन्स रिएक्टेंस डिक्रीजेज, अपोजिशन, तो बल्ब की ब्राइटनेस और बढ़ जाएगी क्योंकि अपोजिशन कम हो गया। Therefore, current increases and brightness या ग्लो भी कह सकते हो, brightness of bulb increases, but it is only in case of capacitor when connected with AC. DC में if you insert this also there is no problem. Why? अरे बल्ब जलेगा ही नहीं भाई, बल्ब जलेगा ही नहीं। So आप अगर ध्यान से सोचें, if you remember this, this is just the opposite case of inductor. Inductor opposes AC and does not oppose DC. It opposes DC and does not oppose AC. तो कैसा लगा आपको वीडियो, अच्छा लगा? तो इसके न्यूमेरिकल्स बताऊंगा आपको, पर इसके बाद LCR सर्किट बताऊंगा, और न्यूमेरिकल्स भी बहुत अच्छे हैं, दे आर वेरी इंपॉर्टेंट। तो मेरे बच्चों पढ़ाई करो, पढ़ाई करो, पढ़ाई करो, चाहे आप बिजनेस करो या नौकरी, स्टडी इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट टू रिफाइन यू,
to make you a people which is a social animal, which is important for nation, for whole world. तभी आप सभ्य पढ़े लिखे बनोगे। और मम्मी पापा का आदर करो, प्यार करो उनसे, और प्यार दो प्यार लो, यही समय है, बाद में समय नहीं मिलेगा आपको। ऑल द बेस्ट मेरे प्यारे खरगोशों। थैंक यू।